Hello students, today I am going to take a question of the chapter sets from class 11 in two different methods. Now the two methods are, one is the basic method where we are going to take the help of the properties, and one I am going to use this particular absorption law which is actually not given in the textbooks but we can use it. So the first method I am explaining here, that is with the help of this absorption law. It is very important because here, let me take this one. The question is, let A, B, C be three sets. It's a question from your textbook where three sets are given. Three sets such that A union B is A union C and A intersection B is equal to A intersection C. तो आप ध्यान दें इसके अंदर हमें प्रूव करना है B and C sets are equal. So first method I am taking using the help of, that is without using this absorption law. So if we start with the, let us say B, I am taking this set B. B can be written as, we know that with identity law, I have to introduce A, then only C can be taken. So with this I am going to take, let us take intersection, or we can have union with null set. And we can start with union null set also, and we can take intersection with universal set also. तो यहाँ पे मैंने null set से लिया है. इससे क्यों लिया आपको बता दूंगा. ये हमारा identity law है. This is identity. As we can see, identity law, union with null set, it is the same. So we can write this one as A intersection A complement. So this is inverse. So inverse we are having. So again we can write this one as A. Now distribution is there. क्यों? क्योंकि बाहर union और अंदर intersection है. तो जब भी एक जगह union और अंदर intersection हो तो distribute बांटने, बाहर intersection और अंदर union है तो भी distribution होता है. तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारे पास B यूनियन A, देन वी हैव इंटरसेक्शन B यूनियन A डैश. अब एक काम कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास B यूनियन A की जगह A यूनियन B है, तो ये जो ट्विस्ट करने वाला पार्ट है, ये ट्विस्ट करने वाला पार्ट जो होता है इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ. तो दोनों में कॉम्यूटेटिव लॉ मैंने अप्लाई कर दिया. ये हो जाएगा A यूनियन B, then intersection, this is A dash union B. Now we can see that this is commutative law. अगर आप law लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लगाया हम लोगों ने inverse law. Clear? यहाँ जो हम लोगों ने अप्लाई किया है वो है distribution. Now when we apply this distribution law, यहाँ पे क्या लगाया, वापस मैंने commutative law लगा दिया. And this commutative law, after commutative law, this part is given that A union B जो है हमारे पास, A union B को हम लोग A union C लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे A union C अप्लाई कर दिया. इंटरसेक्शन ये हो जाएगा ये पोर्शन. Now this is again distribution law. अब distribution कैसा है बेटा, आप एक काम करें, मैं इस पूरे को एक सेट मान लेता हूँ, या आप रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं. मैं यहाँ पे प्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, तो इसको एक सेट मानते हुए डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस. So this becomes A union C intersection with A dash. This is one part. Then comes union. Then A union B C intersection with B. तो जहां अगेन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा और ये आ जाएगा A intersection A dash, फिर union C intersection A dash, फिर union, ये हो जाएगा A intersection B, फिर से union C intersection B. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्ट है हमारे पास, ये क्या है, इसे कहते हैं यूजिंग दिस लॉ, दैट इज इंटरसेक्शन गिव्स यू नल सेट यूनियन. अब इन सब में ये एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में ऑलरेडी गिवन है. व्हाट इज द इंटरसेक्शन बी, यू कैन सी एज इट इज गिवन. तो यहां मैं काम करता हूं, हियर आई यूज्ड गिवन, आप चेक कर लीजिएगा. ये क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के बाद यहां ये पूरा प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा है. So here I use the identity. बाकी क्या बचा, ये हो जाएगा C intersection A dash union. This is A intersection C union C intersection B. यहाँ क्या क्या लगाया, यहाँ एक मैंने लगाया inverse and given part.
ये दो चीजें मैंने यहाँ पे अप्लाई की ना। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब में सी पहले है ना, तो इसका भी सी आगे लाना है तो कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दें। नल सेट के साथ किसी का भी यूनियन कर दो, आइडेंटिटी है हमारे पास, ये तो सी इंटरसेक्शन ए डैश ही बचेगा। ये कितना हुआ, यूनियन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। सो यू कैन सी दैट हम लोग कहते जरूर है कि कॉमन निकाल रहे हैं, इसे कॉमन नहीं कहते, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या अप्लाई किया, मैंने एक तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई की, आइडेंटिटी लॉ, और दूसरा कॉम्यूटेटिव। अब इन दो लॉज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन लगा दी है, और हम यहाँ देख सकते हैं कि सी इंटरसेक्शन कॉमन मिला। अब ये कॉमन नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन है, बार बार कह रहा हूं ये कॉमन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे यहाँ पे देखो आप कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन इज टेकन कॉमन, सो इट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसको हम लोग कॉमन कह के भी कर सकते हैं। यूनियन बी बच गया, यहाँ पे मैंने एसोसिएशन बना लिया, मैंने इन दोनों की एसोसिएशन कर दिया, तो ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन, दिस वन इज अ यूनिवर्सल सेट, इनवर्स है, और ये हो जाएगा बी। सो यूनियन विद यूनिवर्सल सेट इज बी, सॉरी यूनिवर्सल सेट, एंड इंटरसेक्शन विद सी विल गिव यू सी। तो यहां क्या क्या मैंने लॉ अप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये क्या बताता है, ये हम लोगों ने इनवर्स अप्लाई किया है। इनवर्स अप्लाई करने का ये आइडेंटिटी कहलाता है। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी लॉ यहां पे भी है, और एक और चीज आप लोग ध्यान रखें, इंटरसेक्शन विद नल सेट will give you null set, union with universal set will give you universal set। so ये कितना हो गया हमारे पास, ये तो प्रूव हो गया भाई, this is hence proved। so this one is one of the method, I know it is a bit lengthier one। यहां हम लोगों ने प्रॉपर्टीज तो लगाई, पर हमने टेक्स्ट बुक की वो प्रॉपर्टीज अप्लाई की है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है, ठीक है। अब मैं एक नई प्रॉपर्टी और जो एनसीईआरटी के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन के तौर पे दे रखा है, इन मिसलेनियस एक्सरसाइज, दिस वन इज अ क्वेश्चन आल्सो, तो हमें इसको अप्लाई करना है। अब मैं आपको इसका एक और अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं। यू कैन सी दैट हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव व्हाट वी हैव ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब हम लोगों ने क्या किया, ये स्टेटमेंट गिवन है, मैंने दोनों तरफ यूनियन विद सी अप्लाई कर दिया, और रादर वी कैन हैव द इंटरसेक्शन फॉर्मेट। तो मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं, सॉरी आई एम टेकिंग द अदर वन, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। अब ये देख रहे हैं हमने क्या किया, दोनों तरफ थोड़ा सा गैप करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। हम लोगों ने यहां पे इंटरसेक्शन यूनियन विद सी कर दिया, यूनियन विद सी। सो व्हेन वी टेक यूनियन विद सी एंड वी कैन अप्लाई दिस डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी दिस एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन क्या कहता है, एब्जॉर्ब हो गया, क्या एब्जॉर्ब हो गया, बी एब्जॉर्ब हो गया। कैसे भाई, ए के साथ ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करने पे ए ही आता है, बी एब्जॉर्ब हो जाता है, और इफ यू टेक कॉमन बिटवीन ए एंड ए यूनियन बी तो उसमें भी यही आएगा, बी इज एब्जॉर्ब। तो एक एब्जॉर्प्शन लॉ जो बता रखा है उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग दैट लॉ दिस पार्ट विल बिकम सी, क्लियर। और यहां लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बनेगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। अब इतना सा पार्ट है हमारे पास। अब यहां पे ए यूनियन सी को हम लोग यूज करेंगे, लेट अस राइट दिस वन एज स्टेटमेंट नंबर 1। नाउ अगेन दोबारा से मैंने क्या किया, A union B and A intersection, sorry this is A intersection B and A intersection C। पहले हम लोगों ने यूनियन विद C लिया था, अब मैं लूंगा यूनियन विद B। तो B के साथ जब आप उसको लोगे ये क्या हो जाएगा, मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, A intersection B and A intersection C यूनियन विद B। अब मैं यूनियन विद B ले रहा हूं, तो जब मैंने B के साथ यूनियन लिया यहां पे अप्लाई होगा, ये फिर जो है वो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो। सो यू विल बी गोइंग टू गेट दिस वन इज सेम B, और यहां क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो ये बन जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C यूनियन B। क्या ये सेम आ रहे हैं, नहीं, तो थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर लेते हैं। ये पोर्शन हमारे को दे रखा था A यूनियन B, तो B यूनियन C है,
सॉरी ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन सी बन गया, और इधर लगा दिया कॉम्यूटेटिव लॉ जो बन गया बी यूनियन सी। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है, इसको अगर मैं सेकंड बता दूं, सो फ्रॉम 1 and 2 B and C are equal. Here, so this law is this proof is much more easier than the previous proof because हमने यहाँ पे absorption law लगाया है। तो जब भी आप इस लॉ को अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट इस लॉ को लिख देना कि भी absorption law के थ्रू किया गया। So thank you very much for watching this video, and better see the next video also. This will be containing very important information for you.